Welcome to all SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edopedia. Today's our subject is Bifocal Computer Science Paper 1. It is from class 11 Science and today's topic is Number System by lecturer Aditi Patil. Now we will see here the details topic of number system. The first topic is binary numbers. Second one is the decimal number. Third one is the octal numbers. Fourth one hexadecimal number. The next one is the conversion from one number system to another. After that ASCII code. After that binary multiplication and division, binary numbers, binary addition, subtractions by 1 and 2 complements. Now the next one we will see the definition of binary number system. Now we will see here what is the definition of binary number system. Generally, binary number system is the number that includes only 0 and 1, means that include only 0 and 1. So decimal number system we use basically 10 numbers and it is start from 0 up to 9. So that total numbers is 10. In digital circuit, it is very difficult to use these numbers directly. For that, new number developed for the operation. And this new number system is known as binary number system. Bi means 2. Their symbols are 0 and 1. So, base of that binary number is 2. And how the base is binary number is 2? Because the symbols are 0 and 1. 0 and 1 means यहाँ पे 0 1 position and the 1 is the second position. So that is the total number of these two symbols are 2. So like this we count the base of binary number is 2. The next one is the radix. Now we will see here what is the definition of radix. Radix is a number. The base of that particular specific number system is called a radix. And these number represent total number of the system. Total number of the system means what? That the weightage or power of 8 digits. Let's see here one example. Decimal number system, basically we use the 10 numbers. And these 10 numbers are, it start from 0 up to 9. So total number of that decimal number system is what? 10. So radix of that decimal number system is 10. So like this we will use the radix of particular number. Now next we will see here there are 4 types of number system. First one is the decimal number system, second is the binary number system, third is the octal number system, fourth one is the hexadecimal. Now we will see here what is the symbols and radix of particular number system. In decimal number system there are 10 numbers are there and it is start from 0 up to 9. So total number of that decimal number is what? 10. So radix of that decimal number system is what? 10. So like this we will count the remaining number system. Binary number, their symbols is 0 and 1. Means यहाँ पे हमारे 2 ही number है, इसलिए radix of that binary number system is what? 2. Like this octal number system, it is start from 0 up to 7. So total number यहाँ पे कितने हो गए? 8. 0 से लेके 7 ये total number होते हैं हमारे 8. तो 8 जो उसका radix है किसका? octal number system का. वैसे ही हम define करेंगे hexadecimal का. हेक्साडेसिमल में टोटल नंबर्स होते हैं 0 से लेके 9 and then after 9 that include alphabet and there A, B, C, D, E and F. So like this the total symbol of these hexadecimal is what? 60. So radix of hexadecimal number is what? 60. So like this we have to define symbol and radix of particular number system. Now see the next slide we will see here binary counting. Binary counting means there are 2 countings is here, means how to count binary number into the decimal number. जो binary counting जो है वो हम किस तरीके से count करते हैं. We will see here the right side 0, 1, 2, 3, 4 up to 11.
तो यहाँ पे जो भी हमारा पोजीशन फर्स्ट आएगा वहाँ पे हम काउंट करेंगे 0। तो 0 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, तो उसका पोजीशन क्या है 0, तो वो है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम किसका, 0 का। द नेक्स्ट आफ्टर दैट द नेक्स्ट नंबर इज व्हाट, 1। तो 1 का पोजीशन क्या है 1, तो वो है उसका बाइनरी नंबर। देन आफ्टर दैट डेसिमल नंबर इज व्हाट 2, बट 1 के बाद आता है 2 और 2 के बाद आता है 3। लाइक दिस हम यहाँ पे काउंट करते हैं 10 तक, बट 10 के पहले जो 9 आता है उसमें कोई भी 0 और 1 नहीं आता है, तो उसको हम कोई भी पोजीशन नहीं देंगे। 9 के बाद पोजीशन आता है 10, तो 10 को हम देंगे सेकंड पोजीशन। तो जहाँ पर भी 0 और 1 आता है बाइनरी काउंटिंग में, उसको हम पोजीशन वाइज पोजीशन करते हैं। तो लाइक दिस वी हैव टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर्स। उसी तरीके से देखिए 10 के बाद आता है 11, तो 11 को हमने पोजीशन दिया है 3। फिर 11 के बाद आता है 12, 13, 14, तो वहाँ पे 0 कुछ भी नहीं आता है। तो लास्ट में आता है 100, तो उसको हमने दिया है पोजीशन 4। तो इसी तरीके से हम काउंटिंग करेंगे बाइनरी numbers का। The next slide is, now we will see here how conversions of decimal numbers into binary numbers। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें लिया है कि 29 जो हमारा डेसिमल नंबर है उसको कन्वर्शन करना है बाइनरी में। तो वी विल सी हियर डिवीज़न मेथड। जो हमने डिवीज़न मेथड यहाँ पे देख रहे हो आप, जहाँ पे हमने 29 नंबर्स पहले लिखा है जिसका हमको कन्वर्शन करना है बाइनरी नंबर्स में, और उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, राइट। और जो भी हमारा रिमाइंडर रहेगा वो हम राइट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने 29 को डिवाइड किया है 2 से, तो उसको रिमाइंडर आता है 1, ठीक है। देन जो भी उसका क्वेश्चन है आएगा वो हम उसके नीचे लिखेंगे। द क्वेश्चन इज़ 40, उसको अगेन हम डिवाइड करेंगे 2 से, और जो भी उसका रिमाइंडर आएगा वो हम राइट साइड में लिखेंगे, तो उसका रिमाइंडर आता है 0। देन the next number is the 7. 7 को again we have to divide it by 2, then the remainder is 1. Then next question is 3, उसको भी हम divide करेंगे 2 से, उसका जो remainder आएगा 1, and the last में बचता है हमारा word। तो like this we have to record reminder from bottom to top to get the answer। तो जो भी हमारा remainder आएगा वो bottom से हम start करेंगे substitute करने के लिए। तो हमारे नंबर्स यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं, 1 1 1 0 1 फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो दिस इज़ आवर बाइनरी नंबर। तो इस तरीके से हम जो बाइनरी नंबर्स जो है फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको डिवाइड को, जो भी नंबर्स है उसको डिवाइड करना है, और जो भी आपका रिमाइंडर आता है वो राइट साइड में रखना है, और जो क्वेश्चन है फिर से उसको हम डिवाइड करना है 2 से, जो क्वेश्चन आता है वो हम रिमाइंडर में रखेंगे। इस तरीके से हम जितना भी नंबर्स दिया है वो 1 तक हम डिवाइड करते रहेंगे। तो नेक्स्ट वन इज कन्वर्जेंस ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर्स बट इन फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। बट यहाँ पे नंबर जो है वो सेम रहेगा बट फ्रैक्शनल नंबर रहेगा। नाउ सी हियर द वन एग्जांपल इज गिवन हियर 88.625। जो पॉइंट के बाद जो नंबर दिया हुआ है 625 दैट इज़ द फ्रैक्शनल नंबर, वो हम बाइनरी नंबर में किस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो जो भी हमारा बेस है बाइनरी नंबर का, जो बेस कौन सा है 2, तो जो फ्रैक्शन का नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फ्रैक्शन नंबर कौन सा है, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 625, उसको हमने मल्टीप्लाई किया है 2 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको आउटपुट मिल रहा है, उसका आंसर मिल रहा है 1.25। तो जो भी पहला हमारा डिजिट है पॉइंट के पहले वो हमारा रहेगा रिजल्ट, तो वो हमने सब्सटीट्यूट किया है राइट साइड में 1। देन अगेन जो हमको आंसर मिल रहा है 1.25, तो पॉइंट के बाद का जो नंबर है मीन्स .25 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो उसका हमको रिजल्ट आ रहा है 0.5। तो पहला जो नंबर है वो हम रिजल्ट पे रखेंगे, और पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है अगेन उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो पहला जो वैल्यू है रिजल्ट में रखा है हमने 0, देन उसके बाद हमने अगेन 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 किया है, तो रिजल्ट आया 1.0। सो 1 नंबर इज 1। तो लाइक दिस वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शनल नंबर। अब यहाँ पे भी हमको क्या करना है, हमको टॉप से लेके बॉटम तक जो नंबर है वो यहाँ पे लिखने हैं।
तो कौन सा नंबर यहाँ पे आया है? 101। तो डॉट के बाद जो हमारा फ्रैक्शन था 6 to 5, अगर हम उसको फ्रैक्शन में डिवाइड करते, फ्रैक्शन में नंबर्स निकालते हैं फ्रॉम डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, तो इस तरीके से निकालेंगे। तो उसका आंसर आएगा पॉइंट के बाद 101। तो नेक्स्ट वन इज, now see, we will see here how conversions of binary number into decimal number by using the expansion method. सर यहाँ पे एक हमने एग्जाम्पल लिया है 1001 और उसको हमको डेसिमल नंबर में कन्वर्शन करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी प्लेस वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो हमारी प्लेस वैल्यू है यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है। फर्स्ट वी विल टेक अ नंबर, द नंबर इज 1001, राइट। देन उसके बाद जो भी हमारा प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू स्टार्ट होता है 0 से, और प्लेस वैल्यू किस तरह से डिफाइन करेंगे, जो भी हमारा बेस है उसको पावर जो है 0 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो नंबर है उसको हमने प्लेस वैल्यू दिया है 2⁻0। उसके बाद जो 0 है उसको हमने प्लेस वैल्यू दिया है 2⁻1। उसके बाद अगेन 0 है, उसका प्लेस वैल्यू है 2⁻2, एंड उसके बाद है 1, उसको दिया है 2⁻3। देन जो भी हमारा प्लेस वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा नंबर है, और जो नंबर को हमको डेसिमल नंबर में कन्वर्शन करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने किया है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻3। देन उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2⁻0 मीन्स व्हाट 1, 2⁻1 मीन्स व्हाट 2, 2⁻2 मीन्स व्हाट 4, एंड 2⁻3 मीन्स व्हाट 8। तो जो भी यहाँ पे नंबर है वो नंबर को हम पूरा भी ऐड करेंगे। नाउ सी हियर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज व्हाट 1, देन 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज व्हाट ऑब्वियसली 0, आफ्टर दैट 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 is what again 0, and 1 multiplied by 8 means what 8. Now we will add the whole number, so 8 plus 0 plus 0 plus 1 means what 9. So 9 is your answer. So like this we have to conversion of binary number into decimal number by using the expansion method. Now we will see here again how conversion of binary number into decimal number but fraction number. ठीक है, तो डॉट के बाद जो भी नंबर है दैट वन इज द फ्रैक्शनल नंबर। बट यहाँ पे अभी हमको कन्वर्शन क्या करना है, बाइनरी नंबर से लेके डेसिमल नंबर तक। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले हम वो नंबर लिख लेंगे 0.1011, ठीक है। तो डॉट के बाद कौन सा नंबर है 1011। तो जो भी डॉट है उसको हम कंसिडर करते हैं 0 पॉइंट, राइट, एंड आफ्टर दैट वी विल कंसिडर 2⁻1 2 3 4, ठीक है। तो 0 के पहले जो आते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और डॉट के बाद जो होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन के बाद 0 के बाद जो आ रहे हैं वो नेगेटिव होते हैं, इसलिए हमने बेस से वहाँ पे हमने नेगेटिव जो रेडिक्स है वो नेगेटिव के साथ हमने बेस रखा है। तो सबसे पहला नंबर है हमारा 1, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻1, the second value is 0 multiplied by 2⁻2, the next number is the 1 multiplied by 2⁻3, and the last one is the 1 multiplied by 2⁻4. अब 2⁻1 means what 2/1 by 2, right? तो 1/2 1 multiplied by 1/2, जो भी आपका रिजल्ट आता है हम यहाँ पे रिजल्ट में लिखते हैं, तो रिजल्ट इज 0.5. Then 0 multiplied by 2⁻2 means what 1/2⁻4. तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा हमारा रिजल्ट यहाँ पे आया है 0. Like this we have to multiply it by 1 multiplied by 2⁻3. The answer will be 0.125. Then 1 multiplied by 2⁻5. तो इसको भी हमको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको आंसर मिलता है 0.0625, ठीक। फिर जो भी हमको यहाँ पे आंसर्स मिलते हैं, जो भी हमारे एक्सपांशन हमने किया है, जो भी हमको वैल्यू मिल रही है, वो सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट वैल्यू है 0 पॉइंट है उसके पहले है 0, तो उसको ऐड करने से हमको 0 ही मिलेगा। पॉइंट के बाद देखो
0 plus 1 plus 5, that is 6. After that 6 plus 2, that is 8. Then after that 5 plus 2, that is 7. And last one is the 5. तो दैट इज़ योर आंसर. तो हमारा 1011 का अगर डेसिमल फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्शन करना है तो इस तरीके से करेंगे, जिसका आंसर आता है 0.6875. सो दिस इज़ आवर फ्रैक्शनल नंबर. सो लाइक दिस वी हैव टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर. ओके, थैंक यू.